अमरदास जी महाराज की, पिता अमरदास जी महाराज की, परमहंस महाराज की, समस्त सुंदर प्रणाम। હવે લાઈટ નું કામ કરશે, આપણે આપણું કામ કરીએ। એમના ભરોસે રહીએ તો કદાચ 4 વાગ્યા સુધી ના આવે તો ભરોસાની ભેંસ પાડો જાણે એટલે ભરોસે રાખવાનો ને આવશે તો કઈ વાંધો નહીં, સ્વીકાર કરીશું, ના આવે તો કાંઈ વાંધો નથી। આજે આપણા માટે અત્યંત ખુશીનો દિવસ। નવનિર્મિત મંદિરમાં અને લગભગ નીચેનું કામ તો પૂરું થવા આવ્યું છે અને સૌથી પહેલાં અમારા ગુરુજી મોહનકરાચાર્યજી મહારાજ અહીં એમના પાવન પગલાં પાડ્યા, એમના સાથે સ્વામી શિવાનંદજી મહારાજ પધાર્યા। એકવાર જોડા તાલીથી બધા લ્યો, મારા માટે ન બતાવશો તો ચાલે, હું તો તમારો જ છું। એટલે આજે અમારું આવવાનું કારણ પછી જણાવીશું, પણ આપણી સંસ્કૃતિ મુજબ ગુરુજનો સંતો આપણા આગળ પધાર્યા હોય તો સૌથી પહેલાં એમને ફુલારોથી આપણે સન્માન કરીએ અને પછી આપણા કાર્યક્રમને આગળ વધારીશું। તો સૌથી પહેલાં અમારા વરિષ્ઠ મુરબ્બી વિનોદભાઈ અને પ્રવીણભાઈ બે જણા અહીં આવો। પરમ પૂજ્ય ગુરુજી મોહનપીરાચાર્યજી મહારાજજીને ફુલાર કરીને અને આપણે એનું સન્માન કરીશું। પૂજ્ય મોહનપ્રિયાચાર્યજી મહારાજ કી જય। વિજયભાઈ અને ફતેશભાઈ બોલો શ્રી બોલો શ્રી પ્રાણનાથ જય। કોણ બચ્યા છે? કોઈ પણ કાર્ય થવા માટે કારણ બનતું હોય છે, તો શું કારણ બન્યું? તો અમે 2018માં પ્રાણનાથજીના ચતુર્થ શતાબ્દી મનાવવા માટે અમે 2.5 વર્ષ સુધી રાજ્યને લઈને આ જ રથ લઈને અમે સમગ્ર ભારતમાં ભ્રમણ કર્યા। કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી અને દ્વારિકાથી લઈને મણિપુર સુધી અમે લોકો ફર્યા। પછી વર્ષો પણ થઈ ગયા હતા અને આ રથને ચલાવનારા અમારા સારથી જે હતા એમનું હમણાં ધામગમન થયું અમદાવાદની સામે। 2.5 વર્ષ સુધી આપણે સાથે રહ્યા, સાથે જમ્યા અને એમને 1 પૈસા લીધા વગર વેતને વગર વેતન લીધા વગર 2.5 વર્ષ સુધી અમને રથ ચલાવ્યું। એનો નામ આપણે નક્કી કર્યા કે જવાનું તો છે, જવું પડશે અને કઈ રીતે જઈએ એમ વિચાર્યું। અને ત્યારે છુટ્ટીનો સમય, વેકેશનનો સમય અને પ્લેન ભાડું જોયું ને ત્યારે ત્યાંથી અહીંયા આવતા તો 22,000 રૂપિયા ભાડું હતું। તો વિચાર કર્યો કે આટલું ભાડું છે, આ કરતા રથ લેતા જઈએ અને 2-4 જગ્યા મેન જગ્યામાં ફરતા આવીએ, સ્થળે કરી ધામના બેસની ધામના દર્શન કરીએ અને આસપાસના શહેરોને પણ લઈએ વિચાર કરીને પ્લાન બન્યું અને દિલ્હીથી અમે આ યાત્રા પ્રારંભ કરી। 21 તારીખથી એનો થોડી શાંતિ રાખજો। દિલ્હી, જયપુર, સિકાર, અજમેર, અજમેર પછી મેરતા, નાગોર, શામળાજી, અમદાવાદ, પછી જુનાગઢથી ધોરાજી, ધોરાજીથી નોતનપુરીથી રાજકોટ અને રાજકોટથી સીધા ખંભાત અને ખંભાતથી કાલોલ અમે આવ્યા। બોલો શ્રી અને બપોર પછી 4 વાગે વડોદરા મુકામે સમયાલામાં આપણા મંદિરમાં સત્સંગનું આયોજન છે। રાત્રે અમે ત્યાં મુકામ કરીશું
અને કાલે સવારે સરદાર સરોવરને જોઈને અમે સુરત બાજુ પ્રસ્થાન કરવાના છે. સાંજે 4 વાગ્યાને સુરત ઉતરવાના છે. પછી સુરતથી વલસાડ, વલસાડથી ગણદેવી થઈને આ જ રસ્તે આ રથ દિલ્હી વળી 5મી તારીખે સવારે ત્યાંથી નીકળશે, 4મી તારીખે, અને પછી દિલ્હીથી આ કાર્યક્રમ પૂરો થશે. તો સુરતથી બાય પ્લેન સુરતથી દિલ્હી અને દિલ્હીથી ઈટાનગર જવાનું છે, કારણ કે 5મી તારીખથી ત્યાં શિબિરનું આયોજન છે બાળકોનું. અત્યારે અમારે જે ગરમીની છૂટી હોય છે ત્યારે, એટલે આ પ્રમાણે રથયાત્રા કરી રહ્યા છે. અને રાજી મહારાજની ખૂબ કૃપા, આ આપણું જૂનું મંદિર, ઐતિહાસિક મંદિર આપણું, અને ઘણા દિવસથી ગુરુજીની પણ ઈચ્છા હતી, જ્યારે મળે ત્યારે કાલોલનું કામ કેટલું થયું, ક્યાં સુધી પહોંચ્યું, બાર પૂછે કે તૈયારી થઈ રહ્યા છે, ટાઈટ લાગી ગયા છે, અને થોડું વગરનું કામ બાકી છે, વાત કરી. અને અમે કીધું કે હવે ત્યાં બરોબર આવી રહ્યા છે, કાલોલ આપણે જઈએ તો જઈએ તો શું, જવાનું છે ઘરની. ગુરુજીએ પોતે કીધું, હા જવાનું જ છે, તૈયારી કરજો કરીને કીધું. એટલે અમે અહીં આવ્યા છે, અને આપ સૌ સારી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત થયા, એટલે મને પણ થોડો ગૌરવ થયો. અમે લોકો ના આવ્યા હોત તો પછી ગુરુજીને એમ લાગે કંઈ તૈયારી તો કરી નથી કરીને. ભલે વરસાદ આવ્યો, પણ તમે વરસાદને ગોઠ્યા વગર, એમની પ્રવાહ કર્યા વગર આટલા સંખ્યામાં આવ્યા છે, એટલે બહુ સારું છે. તો હવે અમારા ચંદીગઢથી પધારેલા પૂજ્ય મહારાજજી શ્યામાનંદજી મહારાજ એટલે આપણા સંપ્રદાયના પ્રખર પ્રવક્તા છે, શ્રીમદ ભાગવતના નિષ્ણાત છે, સાથે સાથે વાણી વિતક ચર્ચાના તો નિષ્ણાત છે જ, અને ધર્મના સાથે સાથે રાષ્ટ્રભક્તિમાં પણ ઓતપ્રોત છે. તો જાજા ન કહીને પૂજ્ય શ્યામાનંદજી મહારાજને પ્રાર્થના કરું છું. આ મારું કાલોલ મંદિર આપણે દર્શન કર્યા, આજે ઉપર જશે, હજી કામ થોડું બાકી છે, અને કાલોલમાં આપ પધાર્યા એટલે સૌથી સારી વાત છે. અને આ કાલોલના સુંદર સાથને આવા આશીર્વાદ સાથે પ્રવચન આપજો કે આ લોકો હજી સક્ષમ થઈ ગયા છે. ગરીબ તો કોઈ નથી, પણ મનથી થોડા ઘણા ગરીબ છે, તે મનની ગરીબી પણ નીકળી જાય અને મન મક્કમ થઈ જાય, તો પછી હજી ધડકતું ચાલે ને બધા સુખી થાય. આવા આશીર્વાદ સાથે સુંદર સાહેબને ખૂબ પીરસજો મહારાજજી. શ્યામાનંદજી શિતકરાન નવનીરદાભાત પીતાંબરા ધરુણબિંબ ફલાધરોષ્ઠાત પૂર્ણેન્દુ સુંદર મુખાદ અરવિંદ નેત્રાત કૃષ્ણાત પરમ કિમપि તત્વમહં ન જાને. निजानंद को सुमिर के सदगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम. बार बार विनय करूं सुंदर साथ से ये, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम सने. श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्र श्री सदगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ. आज इस कालोल के प्राचीन मंदिर के नवीनीकरण के पावन अवसर पर आप सभी के बीच परम पूज्य महाराज श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी, जिनके संरक्षण में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, ऐसे हमारे समाज के, प्रणामी समाज के प्रखर सेवा और समाज में अनेकों प्रकार के विधाओं को लेकर के आगे बढ़ने वाले पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज थोड़ी देर पहले यहीं बैठे थे. हमारे पास भजन गायक कथाकार श्री राजीव लोचन जी, और यहाँ पे बैठे हुए हमारे श्री ब्रजेश धामी जी,
जिनका निक नेम पंचू जी है, और इसी तरह से हमारे भाई श्री युवराज जी जो चंडीगढ़ से मेरे साथ आए हैं, और हमारे श्री सुखविंदर जी राणा जो चंडीगढ़ से मेरे साथ आए हैं और ड्राइविंग करके हम सबको सब जगह भ्रमण करा रहे हैं, और हमारे श्री श्रवण प्रणामी जी जो ये मीडिया के माध्यम से आपके घर घर में हम लोगों को पहुंचा देते हैं, और साथ में आप सभी कालोल के संपूर्ण कलाकार सुंदर साथ जी, आप सभी को मेरी ओर से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सबसे पहले तो मैं एक हमारे भाइयों के लिए अच्छी बात बताने वाला हूँ। हम जितने भी मंदिर में गए, जगह जगह हमने भ्रमण किया, अभी तक जितनी हमारी यात्रा हुई, इन सारी यात्रा में सबसे ज़्यादा पुरुषों की मात्रा यहीं मिली। यहाँ माताएं कम, पुरुष वर्ग ज़्यादा हैं। तो ये देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जहाँ पे पुरुष आगे होकर के कार्य करते हैं, वहाँ पे पुरुषार्थ झलकता है। और पुरुषार्थ ही नहीं, वो पुरुषार्थ 4 पदार्थ को भी पूर्ण कर देता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुष स्वयं धर्म का स्वरूप है, और माताएं तो श्रद्धामयी भक्तिमती माताएं होती हैं। तो माताएं भक्ति प्रधान होती हैं, आप धर्म प्रधान होते हो, सेवा प्रधान होते हो। तो दोनों समाज मिलकर के जिस कार्य को आगे बढ़ाएं, वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। लेकिन श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में एक चौपाई बड़ी प्यारी कही है, बड़ी अच्छी, जो हर किसी को याद है। ज्यों ज्यों साथ में होता है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होता है सुख। ज्यों ज्यों विरोध करते हैं साथ में, अंतवाही को है जो दुख। हम सब सुंदर साथ को प्रेम के साथ, करुणा के साथ, मैत्री के साथ, आपस में पूर्ण संबंध के साथ हमें कार्य करना चाहिए। सुंदर साथ में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ सब एक हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब एक ही सुंदर साथ हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने कहा, जैसे जैसे सुंदर साथ में प्रेम बढ़ता है, मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे सुंदर साथ में आपस में विरोधाभास होता है, तुम इसको मानने वाले, तुम इसको मानने वाले, तुम उसको मानने वाले, ये विरोधाभास पैदा होता है, तो श्री प्राणनाथ जी को बहुत दुख लगता है। प्राणनाथ जी को दुख लगने का मतलब राज जी को दुख लगना है, राज जी को दुख लगने का मतलब श्यामा जी को दुख लगना है, श्यामा जी को दुख लगने का मतलब संपूर्ण सुंदर साथ को दुख लगता है। इसलिए हम प्रेम से सारे समाज में कार्य कर सकते हैं। यहाँ जगत में स्त्री पुरुष का भेद है, यहाँ कोई पुरुष है, यहाँ कोई स्त्री है, लेकिन राज जी महाराज के सामने हम सब एक हैं, भेद है ही नहीं राज जी महाराज के सामने। एक बार मेरे गुरुजी मंगलदास जी महाराज, सिलीगुड़ी की बात है, हमारे राधिका दास महाराज, स्वामी सदानंद जी महाराज, हम सब लोग बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज ने हम सब को खड़ा करवाया, खड़ा करके कहा, एक दूसरे को प्रणाम करो। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, बड़ा छोटे को प्रणाम करो, छोटा बड़े को प्रणाम करें, घुटने टेक करके सबको प्रणाम करो। हमने उस समय वो बात नहीं समझी। बाद में गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। जहाँ भेद भाव मिट जाता है, वहीं से प्रणामी धर्म प्रारंभ होता है। देखिए हमारी शुरुआत, जहाँ सारा भेदभाव मिट जाता है, वहीं से हमारी धर्म की उत्पत्ति होती है। न कोई ऊंच न कोई नीच, न कोई छोटा न कोई बड़ा। कभी कभी हमें लगता है भगवान ने ये क्या किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जाति नहीं है, ये वर्ण है, ये वर्ण व्यवस्था है। इसको वर्ण व्यवस्था कहा गया है। विराट पुरुष एक संसार है, विराट पुरुष। विराट पुरुष के मुख में जब ब्राह्मणत्व का प्रवेश हो गया, तो विराट पुरुष बोलने लग गए।
जब क्षत्रिय का गुण प्रवेश हो गया तो हाथ हिलने लग गया। जब वैश्य का प्रवेश हो गया उधर की तृप्ति होने लगी। देखो उधर की तृप्ति बहुत पहले है, तभी तो बिजली चमक रही है, थोड़ी देर में आ भी जाएगी। और उसके बाद शूद्र का मतलब है जहां पे पैरों में भगवान श्रीमन नारायण ने प्रवेश किया तो पैर हिलने लग गए। शूद्र का मतलब होता है श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु। इसलिए हमारा शरीर ही 4 भाग में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। और शूद्र ब्राह्मण के शरीर में अगर शूद्र को निकाल दिया जाए, दोनों टांग को हटा दिया जाए, तो ब्राह्मण नहीं चल सकता, क्षत्रिय काम नहीं कर सकता। ब्राह्मण तो ऊंची जाति का है ना, बहुत ऊंची जाति का है। उसको कहेंगे तुम शूद्र को लेकर के क्यों घूमते हो, ये टांग तो शूद्र है, इतना इतना निकाल दो, तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहेगा। इसलिए ब्राह्मण को अहंकार नहीं करना चाहिए, न क्षत्रिय को अहंकार करना चाहिए, न वैश्य को अहंकार करना चाहिए। हमारा पूरा शरीर एक ही है, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमें जाति पाति से ऊपर उठना है। जाति पाति का बंधन मोक्षदायक नहीं होता, जाति पाति के बंधन से हम सब को ऊपर उठना है। कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, हमारी एक ही जाति है। जात हमारी ब्रह्म सृष्टि परम धाम में वासा, हमारी सब की एक ही जाति, हम ब्रह्म सृष्टि हैं। सुंदर सात हैं, सुंदर सात बनने के बाद सारी जाति पाति समाप्त हो जाती है। क्योंकि जाति पाति के उलझन में हमारा हिंदू समाज बट रहा है, हिंदू समाज बढ़ता है। अगर हम बोलेंगे छोटी जाति का, ये उस जाति का। मैं पंजाब से आया हूँ, चंडीगढ़ से, कभी आपको भ्रमण करने का मन करे तो आ जाना उधर। चंडीगढ़ बहुत सुंदर शहर है, बहुत अच्छा शहर है। तो चंडीगढ़ के पास जो पंजाब है, पंजाब में बहुत ईसाई लोग बढ़ रहे हैं। तो मुझे जिम्मेदारी है वहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है छानबीन करने का। मुझे वहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी गई है संस्था की ओर से, विश्व हिंदू परिषद से। तो मैं जब वहाँ पे छानबीन करता हूँ तो 99% लोग बोलते हैं कि हिंदू लोग बोलते हैं ये छोटी जाति का है, इसलिए हम ईसाई बन जाते हैं, इसलिए मुसलमान बन जाते हैं। लेकिन प्रणामी धर्म में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, जाति पाति के लिए कोई स्थान नहीं है, सब समाप्त हो जाता है हमारे यहाँ आकर के। ये सारी भावना हमारे दिल में जागृत हो जानी चाहिए और हम एक बन करके, नेक बन करके संसार में हम चलते रहें। और विश्व हिंदू परिषद में कार्य करता हूँ, इसलिए आपको एक सुझाव दे रहा हूँ। आप अपने घर के आगे एक छोटी सी खोली बनाइए, लकड़ी सीमेंट का, जिसमें पानी भर दीजिए और एक गाय को खींच करके लाइए, पानी पिलाइए, थोड़ा चारा डाल दीजिए, हरा घास जो भी है आपके पास। तो एक गाय आपके सामने घास खाएगी, पानी पिएगी, तो रोज आपके सामने वो गाय आएगी। और गाय आने के बाद आपको जो गोबर छोड़ के जाएगी, उस गोबर को इकट्ठा करके आप उसको ऐसे बनाइए, सर्दी के दिनों में सेकने के लिए काम आएगा। उस गाय के गोबर को इकट्ठा करके ये लंबा लंबा बना के रख लीजिए, हवन में काम आ जाएगा। गाय कुछ खाती है तो बहुत कुछ दे के जाती है, इसलिए गाय की सेवा गौशाला में नहीं कर सकते तो अपने घर में एक गाय की सेवा करने का नियम बनाइए, तो आपको गाय का गौशाला खोलने का फल मिलेगा। इसलिए गाय की सेवा होनी चाहिए, धर्म की सेवा होनी चाहिए। धर्म कहते हैं बैल की सेवा भी होनी चाहिए। तो बहुत लंबी बातें नहीं करेंगे, आप सबके यहाँ करके बड़ा अच्छा लगा। हमारे पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज तो हमारे मित्र भी हैं, मित्र जैसे भी हैं, और संत होने के नाते हम संतों की आपस में मित्रता होती ही है और बड़ा प्यार है, सालों से बड़ा प्यार है। उम्र में मेरे से 10 साल छोटे हैं, इसलिए मेरे से छोटे होने से मैं बड़ा प्यार स्नेह भी इनको करता हूँ, है ना। मैं सफा चट हूँ तो जवान दिखता हूँ, ये दाढ़ी दूढ़ी में है तो थोड़े बुजुर्ग दिखते हैं, है ना। बस इतना ही अंतर है, लेकिन बचपन से ही लगाव रहा, प्यार रहा, संबंध रहा। जब उनके आश्रम में वहाँ जाना होता है, कुछ दिन रहने से आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह स्थान सामान्य स्थान नहीं है आश्रम का। हमारे गुरुजी पीताम्बरदास
हमारे गुरुजी मंगलदास जी के गुरुजी का स्थान है, पीताम्बर दास महाराज का स्थान है, वहाँ भी हमारा सर झुकता है ना। और ये देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद हुआ। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, अगले साल तक इसको बढ़िया से पूर्ण करके बढ़िया पारायण रखा जाए और हम सबको बुलाया जाए। भाड़ा देना, बाकी ज़रूरत नहीं है देने का। आने जाने का किराया हमें ज़रूर देना, बाकी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लेन में आएंगे तो प्लेन का देना, ट्रेन में आएंगे तो ट्रेन का देना, गाड़ी से आएंगे तो गाड़ी का देना, बस इतना ही। और कोई ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, इतना तो लेने का हमारा हक बनता है। तो बहुत बहुत आप सबको शुभकामना, शुभ भावना देते हुए, मंदिर की खूब प्रगति की भावना रखते हुए, आप सब कभी दिल्ली आएँ, उधर आएँ तो चंडीगढ़ आप आएँ, आपका स्वागत मैं करूँगा बढ़िया से, जैसे आपने यहाँ किया। तो आप सबका दर्शन पा करके मुझे बड़ा आनंद आएगा। आप सबको कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। श्री निजानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तन्नमामि। बंदो सतगुरुचरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की। आज यहाँ जागनी यात्रा के दौरान गुजरात, राजस्थान भ्रमण और गुजरात भ्रमण, ये कार्यक्रम हम लोगों ने 15 दिन का कार्यक्रम बनाया। और दिल्ली राजस्थान के भ्रमण में ग्रुप लीडर मैं बना हुआ था। गुजरात के भ्रमण में हम लोगों ने नारायण स्वामी जी को ग्रुप लीडर बनाया, क्योंकि गुजरात में इनका ज़्यादा परिचय है ये जान करके। और इसी दरमियान में हम लोग भिन्न भिन्न स्थानों में होकर के आप सबके बीच भी पहुँचे। तो श्री नारायण स्वामी जी महाराज और हमारे चंडीगढ़ से श्री श्यामानंद जी महाराज, जिन्होंने ओजस्वी वाणी के द्वारा आपको संबोधित किया, राजीव लोचन जी, इधर ब्रजेश दामी जी, सुखविंदर जी और श्रवण कुमार जी, युवराज जी, हमारे 8 जने का हम लोगों का एक टीम है जो हम लोग दिल्ली से चले हैं। और यात्रा में जगह जगह वाणी का क्या रहस्य है, धर्म का क्या सिद्धांत है, जीवन का क्या अर्थ है, जीवन का क्या मूल्य है, इन विषयों पे चर्चा करते हैं। आज भी मैंने सोचा था वाणी खोल करके चर्चा करें, परंतु आज थोड़ा बरसात ज़्यादा हुई और बिजली भी अभी हमारे उसमें नहीं है, तो बैठ कर के चर्चा करना, आवाज़ सब तक नहीं गूंजेगी, इसलिए खड़े होकर के ही वाणी की एक चौपाई का सारांश रख रहा हूँ। आबो अवसर केम भूलिए कारण एक कोलिया अन्ना, जेटला माटे आप मुझावी केटला करो सो कई कोट बिगन्ना। एटला माटे आप मुझाई कई कोट करो कटला बिगन्ना। ऐसे करके श्री जी ने पुराना कीर्तन में एक चौपाई रखी। ऐसे तो बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, पर आप देखिए कि पुराना कीर्तन का अर्थ होता है शास्त्र पुराणों में जो लिखा है उसको उन चौपाइयों में गुजराती में श्री जी ने प्रकट किया, तो उनको पुराना कीर्तन ऐसा करके कहा। तो इसमें कहते हैं कि अवसर जो आता है उसका लाभ लेना चाहिए। अवसर जो चूक जाता है तो जीवन में खाली खाली रह जाता है, कोई उपलब्धि नहीं होती है। जैसे विद्यार्थी का पढ़ने का अवसर है, 20 साल 22 साल 25 साल तक पढ़ने का अवसर है। नहीं पढ़े विद्यार्थी तो जीवन भर लेबर काम करते रहो, खेती करते रहो, और कोई उपाय नहीं है, कमाई का साधन नहीं है। ऐसे ही आप देखिए कि खेती करने वाले भी बरसात के दिनों में अवसर ढूंढ करके खेती करें तो फसल अच्छा निकल आता है।
इसी प्रकार से आप देखिए व्यापारी लोगों का भी एक अवसर होता है, और ऐसे ही राजनीति करने वालों का भी चुनाव के दिनों में अवसर होता है। जनता के दिल को जीत सके तो 5 साल तक 10 साल तक राज कर सकते हैं। हर एक के जीवन में अवसर आता है। तो हम धार्मिक लोग जो धर्म में विश्वास रखते हैं और मंदिरों में गुरु के वचनों में विश्वास रखते हैं, हमारा भी अवसर है कि कभी संत महात्मा गुरुजन उस रास्ते से जाएं तो उनके द्वारा कुछ ज्ञान सुने, चर्चा सुने, प्राणनाथ जी की वाणी सुने। क्योंकि ऐसे तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी वाणी सब छपी हुई है, अर्थ सहित भी छपी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं। पर गुरुजन उसका गूढ़ तत्व, सार तत्व, उसका मर्म, उसका रहस्य बता देते हैं। इसीलिए उनके मुखारबिंद से सुनने से बहुत कुछ ज्ञान एक साथ ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए हमारे सामने अवसर आया, आप लोगों ने अवसर का लाभ लिया। ये मंदिर कितना 200-250 साल पुराना लकड़ी का मंदिर था, जीर्ण अवस्था में ये मंदिर था। उस टाइम भी हमारे पूज्य नारायण स्वामी जी यहाँ लेकर के आए थे और आप सभी सुंदर साथ में सहयोग किया, तन मन धन आप लोगों ने लगाया। तो देखिए इतना सुंदर मंदिर बन गया। अभी देखिए ऐसा लगता है कि राज्य का दरबार बन करके तैयार हो गया। और थोड़े दिनों के बाद, दिवाली के बाद में आप लोग राज्य के पूजा भी यहाँ पधराने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अवसर को सफल बनाया, अवसर को सुखद बनाया और अवसर का बड़ा भारी लाभ आप लोगों ने लिया। और जो राज्य ने आपको दिया है उनमें से कुछ कुछ यहाँ चढ़ा करके इतना विशाल रूप में मंदिर खड़ा हो गया। अब सब दिन भजन भक्ति करने के लिए ये हमारे लिए बड़ी जगह हो गई। और कालोल में भी प्रणामी मंदिर है, भव्य मंदिर है, दिव्य मंदिर है। ये इतिहास आप लोगों ने दोबारा कायम किया। पहले के लोगों ने अपने ढंग से इतिहास कायम किया था, पर आज हमारी संख्या बढ़ रही है। हम लोग बड़े बड़े हॉल हम लोगों को चाहिए। 108 पारायण करने की इच्छा होती है। पहले पहले स्वरूप साहिब हाथ के लिखे हुए होते थे, 108 पारायण पढ़ना मुश्किल होता था। अब सब छपे हुए हैं, उसको पारायण पाठ भी होता है, भंडारा भी होता है, सब व्यवस्था हो जाती है। तो ये सब क्या है कि हमें दुनिया में आकर के राज्य को याद करने का एक मौका है। क्योंकि हम परम धाम जब जाएंगे तो राज्य पूछेंगे कि आपने दुनिया में क्या किया, केवल कमाई धंधा नौकरी चाकरी इसी में लगे रहे। तो आप हाथ जोड़ करके कह सकते हैं नहीं राज्य महाराज, हमने आपके नाम से 108 पारायण भी किया, हमने आपका सुंदर मंदिर भी बनाया। क्योंकि संसार में आने के बाद हमें पुरुषार्थ करना है। केवल हम खेल देखने आए हैं ऐसा करके सब कुछ छोड़ते जाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं दुनिया में। संसार में संसार वालों को भी कुछ प्रसाद के रूप में कुछ छोड़ना चाहिए। तो क्या हम छोड़ सकते हैं कि यही मंदिर, यही हमारे विद्यालय और हमारे अन्य सामाजिक सेवा के जो केंद्र है जो हम बना करके जाते हैं, तो युगों युग तक लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है। आपके पूर्वजों ने ये जोड़ा, संपत्ति जोड़ा, आज ज़मीन हम लोगों को ऐसे मिली तो आप लोगों ने इसको सजाया, सुंदर बनाया। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम घर तो सुंदर बनाते ही हैं पर राज्य का मंदिर भी सुंदर बनाएंगे। जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। तो राज्य ही कृपा करते हैं और सुंदर से अति सुंदर मंदिर बन करके तैयार होता है। हम लोग कालिम्पोंग में गुरुजी मंगलदास जी महाराज की कृपा से वहाँ पर धर्म प्रचार का कार्य, स्कूल चलाना, हॉस्पिटल चलाना, मंदिर चलाना, ये सब कार्य करते आ रहे हैं। और आप में से बहुत सारे सुंदर साथ वहाँ दर्शन करने के लिए भी आए हुए हैं। और जब नारायण स्वामी जी को हम लोगों ने प्रपोज किया कि आसाम में पीताम्बर पीठ बन करके तैयार है, आपको वहाँ पर महंत बनने के लिए हम प्रस्ताव रखते हैं। तो पहले तो उन्होंने देखा कि गुजरात में मैंने जीवन गुजारा है, बचपन से आकर के पढ़ाई यहीं की हमने, शिक्षा दीक्षा मेरी यहीं है। आसाम में जा कर के मैं वहाँ फिट हो पाऊँगा, कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ऐसा उनको लग रहा था। परंतु हम लोगों ने कहा कि आप गुजरात में भी करिए, यहाँ भी करिए, वहाँ भी करिए। क्योंकि जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो एक जगह बंद करके वो नहीं रहता है, कई जगह अच्छा अच्छा कार्य कर सकता है।
तो इनको प्रेरित किया, और जब इनको महंत के रूप में हम लोगों ने वहाँ पर नियुक्त किया तो आप सब सुंदर साथ भी, कितने सुंदर साथ वहाँ पर पधारे हुए थे। सबको लगा कि शायद हमारे महाराज अब आसाम में ही रहेंगे, पर ये तो महीना 2 महीना में आ ही जाते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि गुजरात मेरा नहीं छूटता है, क्योंकि यहाँ का रस, यहाँ के लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, इनका क्या है, बचपन से ऐसा स्वभाव हो गया और उनकी प्रेरणा आप लोगों को मिलती रही। तो इस प्रकार से एक सुंदर मंदिर बन करके तैयार हुआ। थोड़ा सा काम अभी बाकी दिख रहा है, पर आप लोगों की लगनशीलता, इतनी बरसात हो रही थी, हम लोग तो सोचे कि घर से सुंदर साथ आ पाएंगे कि नहीं, परंतु आप लोग आए। यही आपकी श्रद्धा है, यही आपकी भावना है। इसी को राज्य समझते हैं। राज्य क्या समझते हैं कि आज बरसात है नहीं जाएंगे, आज धूप ज़्यादा है नहीं जाएंगे, ऐसे करते रहेंगे तो कहीं जा ही नहीं पाते हैं। इसलिए सर्दी हो, वर्षा हो, धूप हो, कैसे भी हो, हम लोग भी सोचे 15 दिन हमारे पास समय था तो हम लोग राजस्थान और गुजरात के मंदिर मंदिर में जाएंगे, सुंदर साथ जागे हुए को दोबारा जगाएंगे, क्योंकि कभी कभी जागे हुए भी सो जाते हैं ना, उनको फिर से जगाना पड़ता है। सदगुरु ने 313 को जगाया, फिर सो गए, फिर प्राणनाथ जी ने फिर जगाया, बार बार जगाते रहना होता है, तभी तो हम जागरूक रहेंगे, तभी हम सब में क्या है कि जीवंतता उस समय बनी रहती है। इसीलिए हम लोग गर्मी में भी यात्रा कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों ने यहाँ पर ऐसे समय में भी इतनी संख्या में आए। पहले मुझे महाराज जी ने कहा था कि ये महीने में एक बार जो कार्यक्रम होता है, सब इकट्ठे होते हैं, उसमें हम लोग पहुँचे, तब हम लोग उधर ही रुक गए, जयपुर में ही रुक गए, नहीं आ सके। वहाँ भी बड़ा मंदिर है, सुंदर साथ ने वहाँ से निकलने नहीं दिया। पर आज उसी रूप में आप लोग आए हुए हैं, तो कोई इधर भोजन तैयार कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई स्वागत की तैयारी कर रहा है। यही हमारा धर्म है। इसी खुशी को लेकर के हम राज्य के पास जाएंगे। इसलिए इस अवसर का पूरा पूरा लाभ आप लोग लीजिए। केवल खाना पीना, घर बैठना, ये तो साधारण व्यक्ति भी करता है। कारण एक कोलियो अन्न कहते ना, एक ग्रास खाने के लिए तो लोग सब परिश्रम करते हैं। हम खाते भी हैं और राज्य को भोग भी धराते हैं। हम खाते भी हैं, घर में रहते हैं और राज्य के मंदिर को सजाते भी हैं। हम धर्म भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, मात्र कर्म में अटके नहीं रहेंगे। हमारा लक्ष्य है धर्म करना, संस्कृति का पालन करना और विश्व मंगल के लिए कार्य करना, और अंत तो गत्वा राज्य को याद करके राज्य के चरणारविंद को प्राप्ति करना, ये हमारा लक्ष्य है, जिसमें आप सब लोग लगे हुए हैं। तो दुनिया में हम विघ्न बाधा न करें। केटला करो छो कोई कोट विघ्न कहते न, सुंदर साथ हो करके लड़ाई झगड़ा विघ्न बाधा ये नहीं करना चाहिए। सुंदर साथ मिलकर रहें, प्रेम से रहें। ज्यों ज्यों साथ में होता है प्रीता, त्यों त्यों मोही को होता है सुखा। ज्यों ज्यों विरोध करता है साथ में, अंत वही को है जो दुखा। श्री जी ने कहा सुंदर साथ में प्रेम प्रीत होगा तो कितना संगठित समाज दिखलाई देता है। सुंदर साथ का ही अर्थ होता है सुंदर संगठन। और जहाँ हम विरोध करने लगे तो विरोध करने से अपने को भी दुख होता है और गुरुजनों को भी दुख होता है। लोग भी हंसी करने लगते हैं कि छोटा सा समाज है, आपस में बैर विरोध कर रहे हैं, क्या फ़ायदा। इसके लिए हमको संगठित होकर के रहना है। जो संगठन से हट गए हैं उनको भी समझा बुझा करके फिर सही रास्ते में लाने का प्रयास हमें करना है। तो ऐसा ही सुंदर सुंदर कार्य हम लोग करें। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि लड़के बच्चे मिलजुल करके रहें, घर में ही रहें, पर कोई कोई लड़के बच्चे दूर भी हट जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं, ऐसा भी कहते हैं माँ बाप से। फिर भी माँ बाप का प्रेम कोई कम नहीं होता है, वैसे ही प्रेम उनका रहता है। हम सभी सुंदर साथ को चाहते हैं मिलजुल करके रहें, कोई अलग से अपना संगठन न बनाए, अलग से अपने विचारधारा न रखें। और आज हम लोगों ने सुबह सुबह खंभात मंदिर में सबसे पुराना हस्तलिखित स्वरूप साहिब का दर्शन करके आए। पहले भी किया था, आज और अच्छी तरह दर्शन करने का मौका मिला। प्राणनाथ जी धाम जाने से 3 साल पहले लिखा हुआ स्वरूप साहिब खंभात के मंदिर में रखा गया है। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, पूरा हम पढ़ करके आए। ये महामंत्र तांबे के एक पत्रे में, घूमर जी के आगर में तांबा का पत्रा है, उसमें भी वो श्री जी महाराज ने
उसमें भी अंकित कर दिया है, कभी न मिटने वाला ऐसा निज नाम महामंत्र उन्होंने हमें दिया है। इसलिए जो ओरिजिनल है उसी को पकड़ना चाहिए, ओरिजिनल ही सब कुछ होता है। बाकी सदगुरु को हम उसी तरह आदर करते हैं, श्री जी प्राणनाथ जी को उसी तरह आदर करते हैं, पर निज नाम महामंत्र जिस रूप में उतरा उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा और एज इट इज़ रखने में ही हमारा कल्याण है। क्योंकि राज्य के वचनों को हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं, राज्य के वचनों को यथावत रखना चाहिए और ओरिजिनल क्या है उसी में लगना चाहिए। तो यही आपको संदेश देते हुए, क्योंकि अभी गर्मी भी काफ़ी है इसलिए आप लोग भी इस तरह यहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर भी राज्य ने हमें मिलाया और हम राज्य के भजन में मूल मिलावा की तरफ बैठक बना करके यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही कार्य अभी जब उद्घाटन होगा तो उसके बाद तो यहाँ कार्यक्रम होते ही रहेंगे, हम लोग आते रहेंगे। जैसे नारायण स्वामी जी, हम लोग एक ही टीम में काम करते हैं, टीम वर्क हम लोग करते हैं, उधर काम होता है फिर भी हम एक साथ जुड़ जाते हैं। आसाम में कोई मेला होता है, अभी फिर आसाम के दूसरे गांव में सुकलाई में दिसंबर में 108 पारायण है, 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक वहाँ पर 108 पारायण है। पहले रंगसाली में हुआ, अभी सुकलाई में, वहाँ भी हम लोग सब जुट जाते हैं। कोई बंगाल में कार्यक्रम हो वहाँ भी जुट जाते हैं, नेपाल में हो वहाँ भी जुट जाते हैं, गुजरात में भी कोई कार्यक्रम हो हम लोग आने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इस स्थान का भी सुंदर रीत से उद्घाटन हो, सुंदर रीत से पारायण संपन्न हो, यही शुभकामना मंगल कामना देते हुए मैं मेरे शब्दों को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे आज के आनंद की प्रणाम।